نیوزی لینڈ میں فوجی طرز کے خودکار ہتھیاروں پر پابندی کا اعلان. گن ریفارمز عوامی مفاد میں ہیں. قانون سازی جلد کی جائے گی. یہ صرف کام کا آغاز ہے. وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی پریس بریفنگ. کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ سے شہید مزید افراد کی تدفین. کراچی کے رہائشی اریب کی بھی نماز جنازہ. لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. 50 میٹر طویل دیوار پر تعزیتی پیغامات. ولنگٹن کی وکٹوریہ یونیورسٹی کے طلباء کا سانحہ کرائسٹ چرچ کے شہداء کو خراج عقیدت. سینٹ پال کی مسجد میں بھی اسٹوڈنٹس کا لواحقین سے اظہار یکجہتی. سیکیورٹی فورسز کا کامیاب ایکشن. پاک افغان بارڈر سے 3 کلومیٹر دور اموری کے مقام پر جھڑپ. دہشت گردوں کے چنگل سے ایران کے 4 مغوی فوجی چھڑا لیے. تہران کے حوالے ISPR کی تصدیق. شکارپور سے گرفتار 5 دہشت گردوں نے افغانستان سے فنڈنگ کا اعتراف کر لیا. گروہی نیٹ ورک کے انتہائی تربیت یافتہ درس کارندے اب بھی موجود. سربراہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی پلاننگ ناکام. ملیشین وزیر اعظم کی 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد آمد. مہاتیر محمد یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. عمران خان سے ملاقات ہوگی. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مذاکرات بھی شیڈول. سمجھوتا ایکسپریس کیس کے ملزمان کی بریت. پاکستان کا بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج. RSS کے دہشت گردوں سے نرمی. کوئی مسلمان ہوتا تو شفاف مقدمے کے بغیر جیل میں ڈال دیا جاتا. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بھی تنقید. اسلام آباد کے ناندرا چوک میں دھما چوکڑی. جیالوں کے ایکشن کے بعد انتظامیہ کا ری ایکشن. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سمیت 50 سے زائد کارکنوں کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج. سینیٹرز کا نام شامل کرنے پر پولیس تذبذب کا شکار. بلاول بھٹو کو دھمکی. پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع کرا دی. وزیر ریلوے پر کالعدم تنظیموں کو اکسانے کا الزام. بلاک 2 میں تقریباً کوئی 4 اور بھی پاور پلانٹس آنے والے ہیں. تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی ادھر سے بلاک 2 سے پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی جائے گی. سندھ حکومت کا انقلابی قدم. تھرکول پروجیکٹ بلاک 2 میں مزید 4 پاور پلانٹ چلانے کی خوشخبری. ملک بھر کو سستی بجلی کی فراہمی. مقامی افراد کو رویلٹی کی رقم اور منافع میں حصہ دیا جائے گا. وزیر توانائی امتیاز شیخ کا وعدہ. PRT کا نقصان ہے نا. یہ دیکھیں ہماری دکانیں تباہ ہو چکی ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم بھیک مانگیں گے. میرا خود اسٹیشنری کا دکان ہے. اس میں میرے ساتھ 5 فٹ اسٹیٹ کی مشین ہے. کم از کم 1 فٹ اسٹیٹ مشین کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے. وہ پانی ہو گئی جی. BRT کے لیے جامع منصوبہ بندی نہ ہونے کا پول کھل گیا. نالوں کا پانی انڈر پاسز میں داخل. ارباب روڈ پر دکانوں میں رکھا کروڑوں روپے کا سامان برباد. کاروباری افراد کی فریاد. ہم ابھی کس سے مانگیں گے، کس سے کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک. یہ دیکھو پانی چلے گئے اور ابھی تک کیچڑ یہ سارے بھرے ہوئے. ابھی تک کوئی نہیں آیا. ہمارا کاروبار سارا تباہ ہو گیا. ہمارا بچے سارا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. ہم کیا کرے گا؟ ہم کس کو روئے گا؟ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کسٹمز والوں کی دیدہ دلیری. سرعام رشوت خوری. ویڈیوز منظر عام پر. حکام نے بڑی کارروائی سے بچنے کے لیے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا. لیڈی ہیلتھ ورکرز چوتھے روز بھی لاہور کے مال روڈ پر براجمان. ڈٹے رہنے کا اعلان. صبح شام ٹریفک جام سے عوام ہلکان. شہری مشکل میں. جو مطالبات ماننے تھے مان لیے. محکمہ صحت موقف پر قائم. ابھی جو حالت ہے اس میں ہم صرف بچوں کو ایک صرف میسیج یہ دیتے ہیں کہ گیم کریں. ورنہ اگر پرسنلی دیکھا جائے تو گیم نہیں ہے. جتنی اگر یہ بھی گیم ختم کر دیا ہے تو ہاکی ختم ہو جائے گی یہاں سے.
फैसलाबाद में नेशनल हॉकी स्टेडियम की देखभाल और मुरम्मत का काम बंद, इमारत खंडर बन गई, ड्रेन लाइन बर्बाद, वाटर पंप खराब ऑस्ट्रोटर्फ, खिलाड़ियों के लिए खतरा। पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम जैसिंडा आर्डन का कहना है कि कानून साजी जल्द की जाएगी। ये सिर्फ काम का आगाज़ है और आपको बताते चलें कि मज़ीद 3 शोहदा की जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है। इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल मालिक जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर हैं न्यूजीलैंड में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बताएगा कितने अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और कितनों की जो लाशें हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं अब तक? देखें, एज फार एज पाकिस्तान 9 की 9 जो हमारी डिसीज बॉडीज हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम जैसिंडा आर्डन का कहना है कि कानून साजी जल्द की जाएगी, ये सिर्फ काम का आगाज है। और मजीद 3 शहदा के हवाले से आपको बताएं कि उनकी तदफीन कर दी गई है। न्यूजीलैंड के तलबा ने 50 मीटर तवील दीवार पर ताज़ियती पैगाम लिखकर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। इसी पर बात कर लेते एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो कि न्यूजीलैंड में है। डॉक्टर साहब बताएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जैसा मैं कह रहा था, हमारे पाकिस्तान की 9 बॉडीज थी, उसमें से जो इस वक्त तक हमें 9 की 9 रिसीव हो गई हैं। 7 तो एक्चुअली रिसीव हो चुकी हैं, 2 इस वक्त उन पर काम हो रहा है, प्रोसेस उनका अभी गुस्ल वगैरह देना बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3 घंटों में वो भी उन पे का गुस्ल वगैरह मुकम्मल हो जाएगा और वो भी हैंड ओवर हो जाएंगी इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि जो खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है और जो मजीद कानून साजी होगी, क्या एतमाद में लिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से? राब्ते में है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट? इस मौके पे तो मैं कुछ आपसे नहीं कह सकता, कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये तो न्यूजीलैंड का इंटरनल लॉ है जो ये उन्होंने अपने तौर पे डिसीजन करना है। इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है कि ये तो उनके डोमेस्टिक लॉज हैं, वो उसको जैसे चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि 2 की तदफीन आपने कहा कि अभी बाकी है, ये बताएगा कि जो पाकिस्तान में तदफीन होना थी, क्या वो बॉडीज पाकिस्तान आ गई हैं वापस? पाकिस्तान में हमारे एक शहीद जो हैं अरीब अहमद साहब, उनकी बॉडी को जाना है। बाकी 8 लोगों को यहीं पे कल जुम्मे की नमाज के फौरन बाद 4 बजे दफन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, वो कब तक आप हवाले कर देंगे डेड बॉडी जो अरीब की, और कब तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी? जो अरीब की बॉडी है वो इस वक्त हमारे पास है, उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं पहले भी शायद किसी चैनल को कह चुका हूँ कि हेड अप साइन हमने दे दिया है। जो कंपनी लाने जो एमिरेट्स के हैं उनको हमने हेड अप साइन दे दिया हुआ है। और आई थिंक मंगल नेक्स्ट वीक प्रोबेबली वो बॉडी यहाँ से रवाना हो सकेगी, मंगल या बुध। ठीक है, मंगल या बुध को अरीब की डेड बॉडी है वो पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया है। मजीद 3 शोहदा की तदफीन भी कर दी गई है। और आपको बताते चलें कि सिर्फ एक जो शहीद हुए थे इस अफसोसनाक वाक़े में, अरीब कराची के रहायशी, उनकी जो डेड बॉडी है वो 2 दिन बाद पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है और वजीर आजम जैसिंडा आर्डन ने कहा है कि कानून साजी जल्द कर ली जाएगी और ये सिर्फ काम का आगाज है। मजीद 3 शोहदा की तदफीन कर दी गई है। न्यूजीलैंड के तलबा ने 50 मीटर तवील दीवार पर ताज़ियती पैगामात लिखकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। न्यूजीलैंड में फौजी तर्ज के हथियार रखने पर पाबंदी का ऐलान। मसाजिद में फायरिंग के बाद वजीर आजम जैसिंडा आर्डन ने फौजी नौयत के नीम खुदकार हथियार रखने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुदकार और नीम खुदकार राइफल्स और हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। I'm announcing that New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons. We will also ban all assault rifles. We will ban all high-capacity magazines. We will ban all parts with the ability to convert semi-automatic or any other type of firearm
into a military-style semi-automatic weapon. जसिंदा ऑर्डन ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि इस ज़िम्न में जल्द कानून साजी की जाएगी। पुलिस तफसील मिलने के बाद उन्हें तबाह कर देगी। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में शोहदा की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। कराची के रिहायशी अरीब की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान शहरियों हाजी दाऊद नबी और मतीउल्लाह साफी की नमाज जनाजा भी क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। फौजी बाजियाब करा लिए हैं, मुग़वियों को ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक शिगाई में अमूरी के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके 4 मुग़वी ईरानी फौजियों को बाजियाब करा लिया है। कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला पाक अफगान बॉर्डर से 3 से 4 किलोमीटर दूर हुआ। दहशत गर्द मुग़वी ईरानी फौजियों समेत पाकिस्तान दाखिले की कोशिश कर रहे थे। बाजियाब ईरानी फौजियों को ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने अफगानिस्तान से फंडिंग समेत दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए। कार्रवाई मसाजिद, इमाम बारगाहों, दरगाहों में खून बहाने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। रात गए पुलिस ने शिकारपुर के इलाके जागन में कार्रवाई करते हुए ब्रोही नेटवर्क के 2 मुल्जिमान अब्दुल शकूर और अब्दुल हकीम बंगलानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की निशानदही पे मजीद 3 साथी भी पकड़े गए। दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए। मुल्जिमान ने इतराफ किया है कि उन्हें दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के बदले भारी मुआवजा दिया जाता है। मुल्जिमान ने अफगानिस्तान से फंडिंग का भी इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 प्रेशर कुकर बम, 35 हैंड ग्रेनेड, 20 किलो बारूद, 2 पिस्टल, बम बनाने का दीगर सामान और 3 वायरलेस सेट बरामद हुए। मुल्जिमान ने मजीद बताया कि ब्रोही नेटवर्क के इंतहाई तरबियत याफ्ता 10 कारिंदे अब भी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 28 फरवरी को पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले ब्रोही गिरोह के सरबराह हफीज ब्रोही और अब्दुल्ला ब्रोही की हलाकत का बदला लेने के लिए किसी बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुलाकात में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मुजाहिद अनवर और नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना अमूर का भी जायजा लिया गया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, लेकिन किसी ने भी जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।